Good afternoon, everyone. Today we will discuss about ecology and ecosystem. This is Dr. Shivaji Chaudhary from Department of Environmental Science. आज जो है हम परितंत्र और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करेंगे, right? So we will discuss about both. Uh, let us see the second slide. So when we talk about the term ecology, it was termed by a German zoologist called Ernest Haeckel. सो जब इकोलॉजी या परितंत्र की बात आती है तो जो है इसका शाब्दिक जो प्रयोग है उसको ओइकोलॉजी के रूप में शाब्दिक प्रयोग किया गया और जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने जो है 1866 में जो है इसका उपयोग किया। सो उन्होंने जब इसका उपयोग किया उन्होंने ये बताया कि जो है किस तरह जीव जंतु उनके वातावरण से आदान प्रदान करती है और यही मिलके जो है इसको इसी के अध्ययन को जो है इकोलॉजी कहा, राइट। सो ही डिस्क्राइब दिस टर्म ecology in relation to the environment and how animals dwell in environment and how they interact with its surrounding, be it living or a non-living environment, right? So both organic and inorganic components are necessary for life, right? So basically, if you see, it is basically interaction relationship between organism and their environment, physical environment. So physical environment can be like water, temperature, rain, sky. All these are nothing but physical environment, right? And also the living environment, living component. Living component means plants, animals, microbes. You can see all sort of activity, all sort of organisms. They comprise this they play an important part in ecology of particular system, right? परितंत्र की जहाँ तक बात आती है वहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक अंतर संबंध जो कि भौतिक संसार के साथ और हमारे जो जैविक संसार के साथ बनी हुई है, इसी के तारतम्य से जो है जीवन चलता है। और आप देख लीजिए भौतिक चीज़ें जैसे कि आप सूर्य देख सकते हैं, पानी देख सकते हैं, मट्टी देख सकते हैं, आकाश का जो ऑक्सीजन या एयर है, वायुमंडल है, उनको ये सब आप देख सकते हैं, ये सारी जीवन के लिए आवश्यक है। और इसके साथ जो है जीवित संसार में जो है जीव जंतु, चाहे वो पशु हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो पौधे हों, वो ये सारे जो हैं बहुत ज़रूरी हैं जीवन के लिए, राइट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इकोलॉजिकल स्टडीज़, next we talk about ecological studies. Ecological studies can be global, it can be of landscape, it can be ecosystem, it can be community, it can be population, or it can be organismal ecology, right? So परितंत्र विज्ञान का जो है अध्ययन का दायरा बहुत बड़ा है। ये वैश्विक हो सकता है, एक भू परिदृश्य का अध्ययन भी हो सकता है, एक पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन भी हो सकता है, एक समुदायिक विशेष का अध्ययन हो सकता है, एक प्राणी एक जो है आबादी विशेष, एक पर्टिकुलर प्राणियों का आबादी विशेष का हो सकता है, या एक प्राणी विशेष का भी हो सकता है। तो अध्ययन जो है पारिस्थितिकी अध्ययन जो है परितंत्र में अध्ययन जो है, परितंत्र विज्ञान में अध्ययन, इस तरह की कई संस्करण हो सकते हैं, राइट। सो दीज आर टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। Now, when I talk about life science as a thumb rule, you can talk about the cell theory as the basic of life. But in ecological studies, it is basically a species which is most important, right? Species are group of interbreeding individuals. They are reproductively isolated from other such groups. So it all starts with the individual. When individual of same species they combine, they form a population, and different population or different species when they combine together, they form a community. And all these communities they live in a particular ecosystem, and different communities if assembled in a particular geographical region, that is called biome, and the largest of them is called the biosphere, right? जब भी बात आती है प्राणी जब भी प्राणी जगत के अध्ययन की बात आती है तो एक कोशिका आधार बनता है उस अध्ययन का, राइट। चाहे आप जूलॉजी पढ़ लीजिए, चाहे वो आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लीजिए, चाहे वो आप जंतु विज्ञान पढ़ लीजिए,
सो सेल जो है उसका आधार है। लेकिन जब भी हम पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एक प्रजाति के बारे में बात करते हैं। प्रजाति वह विशेष चीज़ है, विशेष व्यक्ति है जो कि अपने ही प्रजाति से जो है संबंध बना के जो है प्रजनन कर सकता है, दूसरे प्रजातियों से नहीं। यही प्रजाति की परिभाषा है। जब भी प्रजाति एक तरह की हो सकती है जो कि एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन हो सकता है, और एक ही प्रजाति की अगर एक ही जगह पे रहे तो उसको जो है पॉपुलेशन या आबादी कहते हैं। और अलग अलग प्रजाति अगर सम्मिलित हो जाएं तो उसको समुदाय कहते हैं। और अलग अलग समुदाय अगर एक स्थान पे रहते हैं तो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और भिन्न भिन्न समुदाय जो है एक जैविक क्षेत्र में रहते हैं तो उसको एक बायोम की संज्ञा दी जाती है। और जितने भी प्राणी रहते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे उसको बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। नाउ next about biotic interaction. So there is an interaction between living organisms. So suppose a living organism may interact with other which can be harmful, which can be beneficial, which can be neutral. All sort of these things are possible, right? See, for mutualism both species, participating species are benefited. For commensalism, one is benefited, other remains unaffected. So it is represented by plus means benefit, 0 means neutral, and minus means detrimental, right? So जब भी जैविक संप्रदान की बात होती है, जैविक आदान प्रदान की बात होती है, दो प्रजातियों में जो है इस तरह का अंतर संबंध हो सकता है जो कि फायदेमंद होगा, जो कि प्लस से दिखाई गई है, और नुकसानदेह हो सकता है जो कि माइनस से दिखाई दे सकती है, या कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जीरो से दिखाया गया है, राइट? सो म्यूचुअलिज्म ऐसा संबंध है जिसमें कि दोनों प्रजातियों को फायदा है। कमेंसलिज्म ऐसा उदाहरण है जिसमें कि एक को फायदा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह से कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा जो है, दोनों को नुकसान है। इसी तरह से परजीविता है, पैरासिटिज्म है, इसमें जो है एक को फायदा है, एक को नुकसान है। चित्र के माध्यम से जो है हमने प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे हमिंग बर्ड देखिए, वह जो है यहाँ से पराग के कण लेके निकला और अपने साथ जो है नेक्टर या शहद लेके निकला है, जिससे कि उसका भरण पोषण होता है। साथ साथ जो पराग आया है एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाता है, जिससे कि उसका प्रजनन होता है और अंकुरण होता है, राइट? सो it is represented for it is responsible for fertilization. Both hummingbird and the flowers are benefited, right? So this is type of a positive interaction or mutualism, right? Next slide, you can see a mosquito is feeding on us. It is causing some infection to us, like say suppose malaria, and it is getting blood as a meal, and it will be able to lay eggs, but it will pass on the parasites to our body, right? So दूसरी जो उदाहरण है वो परजीविता की है, जिसमें कि मच्छर जो है खून लेके अपना प्रजनन की प्रक्रिया पूरा कर सकता है, लेकिन उसने जो है साथ साथ हमारे शरीर में परजीव छोड़ दिए, जिससे कि मलेरिया हो सकता है। तो ये एक पैरासिटिज्म और परजीविता का उदाहरण है। दिस इज वन इज गेन्ड एंड वन इज हार्म्ड। इसी तरह से जो है एक कमेंसलिज्म का उदाहरण है। आप देखिए इसमें जो है एक को जो है फ़ायदा है आपका रेमोरा फिश जो है वेल के साथ है और इसको फ़ायदा है, और आपका जो है वो बचा खुचा खाना जो है शार्क के साथ जो बचा खुचा खाना है वो उसको ले सकता है, और साथ साथ शार्क के साथ होने की वजह से उसको जो है सुरक्षा मिलती है और शार्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो yeah, this is one example of commensalism where shark is living with a remora fish. Remora fish is feeding on the leftover from the shark and it is protected due to shark. But shark as such remains unaffected by presence of remora fish. So this is an example of commensalism. These are types of interaction which take place in nature. The next slide we talk about ecosystem. सो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र का जो इकोसिस्टम फर्स्ट कॉइन्ड बाय A.G. Tansley, English botanist was his name, and he termed this in 1935.
एजी टैंसले एक ब्रिटिश जो है वनस्पतिविद थे, जिन्होंने कि 1935 में जो है पारिस्थितिक तंत्र को वर्ष शब्द का प्रयोग किया। यूजिन ऑडम जो है एक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इसका परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चरल, ये ढांचागत एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, राइट। सो ही डिफाइंड दैट इट इज इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। सो यूजिन ऑडम जो है एक वैज्ञानिक इकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कि ये बताया कि जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है एक ढांचागत और क्रियाशील भाग है प्रकृति का, राइट। तो आप प्रकृति में देख लीजिए कि एन इकोसिस्टम इज अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर plants, animals and other organisms, they are working together to form a bubble of life. Or right, you can see on the right side, you can see on the figure that this bubble of life is represented. You have abiotic elements like sunlight, you can rain, temperature, whatever you can say, even soil, right. So and then we have living organisms. So this completes a bubble of life. एंड आपका जो है पारिस्थितिक तंत्र में जो है दोनों ही सजीव चीज़, निर्जीव चीज़, दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और इसके तारतम्य से जो है जीवन का बुलबुला चलता है, राइट। सो दिस इज अबाउट इकोसिस्टम। नाउ इकोसिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं? इकोसिस्टम्स जो है बेसिकली हमारे पास जो है जल में हो सकता है इकोसिस्टम्स, और जो है स्थल में हो सकता है, राइट। जल में जो है मीठे पानी का हो सकता है और खारे पानी का हो सकता है। मीठे पानी में जो है चलने वाला पानी, उसको लोटिक कहते हैं, और स्थिर पानी जो है लेंटिक हो सकता है, या नम भूमि के हो सकते हैं, यानी वेटलैंड्स हो सकते हैं, राइट। सो इस तरह के जो है वर्गीकरण हो सकता है। टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है आपके क्या क्या आ सकते हैं? वन आ सकते हैं, मरुस्थल आ सकते हैं, घास भूमि हो सकती है, आपका जो है टुंड्रा प्रदेश जो कि आपके जो हिम प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, और इसमें जो है अगर आप फॉरेस्ट के और वर्गीकरण कर लें तो टेम्परेट हो सकता है, ट्रॉपिकल हो सकता है, और बोरियल फॉरेस्ट हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस the ecosystems can be classified into aquatic, freshwater, aquatic and terrestrial, right. Aquatic can be freshwater or marine. Freshwater can again be divided into lentic or sedentary water, lotic or moving water, and wetlands. Wetlands are the bodies where depth of water is not more than 6 meter, right. uh, and then terrestrial ecosystem, we can have so many different type of terrestrial ecosystem, like forest, we can have deserts, we can have grassland, we can have area covered with snow like tundra, right. Forest again can be classified into temperate forest, tropical and boreal forest, right. So these are the types of ecosystem which are there. Now let us come to the structural aspects of ecosystem. जो है structural aspects of ecosystem can be again biotic and abiotic. You can see biotic means it can have producers, consumers and decomposers. Producers, they are producing their own food, right, like green plants. Consumers, they are dependent on these plants, right. They will consume these plants, or they will consume the animals which are there producing as their food material, right. And after their death and these decomposers come into play, like bacteria and fungi, they are the decomposers, right. Abiotic elements, they are like climate, you can sunlight, temperature, rainfall. These are climatic factors which are equally important for life. Edaphic factor, soil factor, how the soil is, if it is sandy, if it is clayey, if it is silty, all these type of soil conditions, they are also equally responsible for the type of vegetation which is present there, right. And then topographic factor, whether it is hilly area or plain area, or it is a valley area, right. So these are equally important. So structurally we can have two different distinct elements, biotic and abiotic. जब भी पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो दो तरह के जो है हमारे पास तत्व हो सकते हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। जैविक तत्व जो हमारे पास उत्पादक हो सकते हैं, उपभोक्ता हो सकते हैं, अपघटक हो सकते हैं। उत्पादक अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जैसे कि हरे पौधे, और उनको खाने वाले जो हैं आपके जो है उपभोक्ता हो सकते हैं। और उपभोक्ता जैसे कि आपके पशु वगैरह हैं, उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, उनको खा के अपना भोजन बनाते हैं।
और उनके मृत्यु उपरांत जो है आपके अपघटक जीव जो है उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई जो है ये डीकम्पोजर यानी अपघटक के श्रेणी में आते हैं। जैविक तत्व में आप जानते हैं कि आपके पास जो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, यानी वायुमंडलीय परिस्थिति जो आपके जो है टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब जो है आपके क्लाइमेट फैक्टर हैं ना। मिट्टी का जो है स्तर, कैसे बलुआ मिट्टी है, अवसादी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ये भी जो है वहाँ का जीवन निर्धारित करती है। और भूपृष्ठ किस तरह है, वो प्लेन एरिया है या हिली एरिया है या जंगली आपका जो है तटीय क्षेत्र है, तो इसके आधार पे भी जो है वनस्पति या वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु जो है निर्धारित होते हैं। तो ये बेसिकली जो है ढांचागत भाग है। नाउ अब आते हैं क्रियाशील भाग पे, या वी कॉल एज फंक्शनल यूनिट। तो बेसिकली हमारे पास जो है 5 जो हैं हमारे पास क्रियाशील भाग हैं। एक है हमारे पास ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा उन्मुखी और जो है कम होता हुआ, ह्रास होता हुआ। और खनिज चक्रण जो है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है ये खनिज जो है हमारे ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। खनिज चक्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्पादकता और जैव भार ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी एक पारिस्थितिक तंत्र का जो है क्रियाशील भाग है, हमारे वृद्धि का सूचक है पारिस्थितिक तंत्र में, है ना। तो जैव भार जो है टाइम और जो एरिया के ऊपर डिपेंड होता है पारिस्थितिक तंत्र में। और साथ साथ जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हर पारिस्थितिक तंत्र जो है एक न्यूनतम क्रम से छोटा क्रम से बड़ा होता हुआ जो है वो एक वृद्धि के चरण की तरफ जाता है। इसको जो है पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। और पारिस्थितिकी सहिष्णुता भी बहुत ज़रूरी है। पारिस्थितिक तंत्र जो है सहिष्णु होंगे तभी वह किसी विपत्ति के बाद जो है एक पुनरुत्थान की स्थिति में आते हैं, राइट। So basically functional units of functional aspects of ecosystem can be energy flow. Energy flow is all of you know sunlight is a source of energy, and energy is flowing from sunlight in one direction and it is gradually diminishing. And also nutrients are required for our growth and survival or maturity. So nutrient cycling is also important. And other thing is productivity and biomass. All of us grow from a little stage, smaller stage to a bigger stage, and we will grow in weight and stature, and it can be measured in terms of biomass, right? So this is called time rate change of biomass is called productivity. So this productivity is an important indicator of functioning of ecosystem. And ecological succession is also depicting the change in ecosystems with respect to time and place, right? So it takes place gradually over a particular area. I'll come to that. And these changes are called ecological succession. And ecosystems have ability to rebound or bounce back from the catastrophe, and this ability to bounce back to original state is called its resilience. So these are the functional aspects. Let us see about energy flow. All of you know the main source of energy is sun in the ecosystems, and by photosynthesis plants are taking it, and these are eaten by the herbivores animals, and they are taken by the carnivores, right? So this energy flow is there, and it is going from sun to these different organisms, and it is not coming back to sun. So it is one directional, unidirectional, and it is gradually diminishing from one step to other, right? So this depicts the energy flow. तो ऊर्जा का प्रवाह आप देखिए, सूर्य ही महत्वपूर्ण प्राथमिक सोर्स है, और इसको जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पौधे अपने में संयोजित करते हैं, और इसको शाकाहारी जीव जो है इसको खा के जीवित रहते हैं। वही शाकाहारी जीवों को जो है भोजन बना के मांसाहारी जीव जो है जीवित रहते हैं, और इसके द्वारा जो है अपघटक जीव जो हैं इन्हीं को जो है भोजन फिर से बनाते हैं। तो ऊर्जा का जो दिशा है वो है सूर्य से जो है एक ही दिशा पे आ रही है प्राणियों की तरफ, और वापस सूर्य की तरफ नहीं जा रही है। तो एक दिशा उन्मुखी है, और हर क्रम में ये ह्रास होती हुई, इसको बोलते हैं लिंडमैन्स, इसको बोलते हैं लिंडमैन्स लॉ, है ना। 10% ऊर्जा का ह्रास हर चरण में होता है। खनिज चक्रण जो है,
खनिज जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खनिज ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, इनको बोलते हैं बृहत तत्व। और कुछ खनिज ऐसे हैं कि वो कम मात्रा में भी हमारे लिए कम होने पर भी हमारे लिए शरीर के लिए उतने ही आवश्यक हैं, है ना। जैसे कि कैल्शियम जो है हमारे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये हमारे अस्थि मज्जा और हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारे चलने के लिए ज़रूरी है। तो ये जो है हमारे को काफ़ी मात्रा में लेने की आवश्यकता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं ये भी शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो ये भारी परिमात्रा में चाहिए, ऐसे तत्व को बृहत तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व भी होते हैं जो कि कम हो लेकिन फिर भी हमारे ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि मान लीजिए आयोडीन हो गया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन हो गया। ये कम मात्रा में ही सही हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे आयोडीन की कमी से हमें घेंगा हो सकता है, राइट। So basically you can think about nutrient cycling as nutrient can be again divided into macronutrient, those which are required in larger amount, and micronutrients. Macronutrients they are required in larger amount like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur. They are required, right? Carbon, hydrogen, oxygen, carbohydrate we are eating, calcium, magnesium. They are responsible for our bone and growth, right? So these are elements which are required in large amount. But there are also elements which are required in smaller amount, but they are equally important, right? Like calcium, iodine, zinc, copper. They are required for our growth, and these are also taken in smaller amounts, and that's why they are called as micro elements. So here on the right side you can see this is called biogeochemical cycle. So plants, they will take sunlight from the roots itself, they will take nitrogen, phosphorus and other elements which are sulfur, which are required for life through the soil, right. And then from this the nutrient whatever they have taken, this is passed on the consumers. And the consumers again, this after their death and decay, they are composed, they are returned back to the soil and broken by decomposers, again they are made available. So this cycle keeps on moving with respect to nutrients which are required for our growth and survival, right. हमारे जो है वृद्धि और जो है हमारे जो है प्रजनन और हमारे जीवन काल में जो भी खनिज तत्व लगते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर जो है पौधों से आते हैं। पौधों के जड़ों से जो है आप जो है ये खनिज जो हैं उन पौधों से में उपलब्ध रहते हैं, चाहे वो फॉस्फोरस हो, मैग्नीशियम हो, आपका जो है जिंक हो, ये जो है ज़्यादातर पौधे लेते हैं। और पौधों को जो है खाने के बाद जो है पशु इनको आहार बनाते हैं, जिससे कि ये उनकी जो खनिज की आवश्यकता है उसकी अनुपूर्ति करते हैं। इनके मृत्यु उपरांत जो है अपघटक जो है वही खनिज को लेते हैं और खनिज को जो है माटी में मिला देते हैं, और ये आने वाले जो भी पौधे होते हैं उनके लिए मिट्टी में फिर से चक्रण करते हैं। तो इसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्रण। इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। Now productivity and biomass. Now productivity is called as time rate change of biomass per unit area, right? So productivity keeps on increasing over a time, but after a time it doesn't increase for a particular organism. So productivity basically can be of plants or can be of animals. If it is in case of plant, it is called primary productivity, and if it is in case of animals, it is called secondary productivity. So जो उत्पादकता जो है बेसिकली दो तरह का हो सकता है, वो प्रथमक उत्पादकता हो सकता है और वह द्वितीयक उत्पादक हो सकता है। जो बायोमास यानी जैव भार का जो है अंतराल जो होता है, जो न्यूनतम और सर्वाधिक का अंतराल जो होता है उसको बोलते हैं उत्पादकता। और उत्पादकता पौधों को भी हो सकता है और पशुओं का भी हो सकता है। पौधों का उत्पादकता को बोलते हैं प्राथमिक उत्पादकता, और जो है पशुओं के उत्पादकता को बोलते हैं हम जो है द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता फिर अगर उसको विभक्त करें तो इट कैन बी, इसको जो है प्रथम प्राइमरी उत्पादक जो है ग्रॉस उत्पादकता कहते हैं। इसके बाद जो है जो बचा रहता है दैट इज़ कॉल्ड नेट, राइट। जस्ट लाइक सैलरी जो है आपके सैलरी के बाद जो है जितना टोटल सैलरी बनता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस, और जो आपके हाथ में आता है दैट इज़ नेट, राइट। सो द लॉसेस दे आर
net after the losses what you are getting is net productivity. So in case of net you can see the loss is by cell respiration in case of plants, श्वसन के द्वारा जो है पौधों में जो है लॉस होता है। इसके बाद जो है पशुओं में जो है उनके मल मूत्र में या उनके टिश्यू में रेस्पिरेशन में ये जो लॉस होता है इसको जो है माइनस करने के बाद जो है नेट प्रोडक्टिविटी बचता है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। नाउ ecological succession. Ecological succession you can visualize here in the, say suppose in a ocean there is a volcanic eruption, you have a barren rock, igneous rock, and slowly the lichens they take over, and gradually small plants they gradually evolve over the period of time, and then there is growth of perennial grasses and all, then after that there is growth of shrubs and all, and lastly there is a you can see trees. So they have, this is forest biome. Right from barren land to the tree growth of the trees, there it takes thousands of years, right? And the community which started is called as a pioneer stage, and in between they are called as intermediate stage, and the last stage is called climax community, right? यहाँ पे एक आप उदाहरण देख सकते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण का, जैसे कि आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है अग्नेय शैल है, अग्नेय शैल के बाद जो है उसमें धीरे धीरे काई वगैरह जमने लगे, है ना, छोटे छोटे पौधे आने लगे, फिर घास आने लगे, फिर जो है झाड़ वगैरह, और लास्ट में जो है वन उस पर ग्रोथ होने लगे। तो शुरुआत के स्टेज में जो आते हैं उनको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी या उद्बोधक समाज जो है कहते हैं, और जो है जो इंटरमीडिएट जो स्टेज है इसमें ग्रास और श्रब्स ये वगैरह आते हैं, और लास्ट में जो है आपके क्लाइमेक्स यानी चरम समाज जो है, चरम समुदाय जो आता है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है या वन है, राइट। लास्ट जो है इकोलॉजिकल रेजिलियंस। सो इकोलॉजिकल रेजिलियंस जो है वह स्टेज है जहाँ पे जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है एक डिस्टर्बेंस के बाद फिर जो है पुनः वह स्थिति में आता है, और ये जो है पृथ्वी पे कई विनाश की घटनाएं हुई हैं, उसके उपरांत भी जो है पृथ्वी अपने जीवन को बनाए रखने में सक्षम हुई है, वही पुनः स्थिति में आने की कवायद पे लगी रहती है पृथ्वी, और जो है वो पुनः स्थिति को बनाए रखने की क्षमता को जो है रेजिलियंस कहते हैं। So ecological resilience is the property by which it bounces back from catastrophes. So Earth has faced a lot of catastrophes. Here in the right side you can see the extinction of dinosaurs 66 million years ago. Meteorite hit caused a massive fire, and it killed about 70% of all life on Earth. But still Earth managed to bounce back from the catastrophe. No, but there is a limit to it, and we are damaging our earth and its resources. Let us